हेलो फ्रेंड्स, मैं रचना अमरनाथ हैप्पी लिटरेचर चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, in this video I am going to talk about one of Shakespeare's most famous and thrilling tragedies, Macbeth. It is a story filled with witches, मतलब कि चुड़ैल लोग हैं, then prophecies, जहाँ पे भविष्यवाणी होती है, ambition, murder and a whole lot of guilt, पछतावा. So we will see how a brave soldier turns into ruthless king and how his hunger for power destroys everything around him and himself. So sit back, relax and let's travel to ancient Scotland to meet Macbeth, Banquo and the mysterious weird sisters and see how one strange meeting changes the fate of an entire kingdom. तो ये स्टोरी है मैकबेथ की, जो पावर के लालच में अपने आसपास की सारी चीज़ों को बर्बाद कर देता है, यहाँ तक कि खुद को बर्बाद कर देता है. सो लेट्स स्टार्ट. It is the 11th century in Scotland. Imagine this. The air smells of smoke and blood from battle. The land is wild, castle standing against stormy skies, forest whispering with secrets, and far off hills echoing with the sound of marching armies. So friends, in this world of warriors and kings, honor is everything. सम्मान जो है वो सब कुछ है, but so is ambition. And sometimes ambition can be dangerous. अगर हम बहुत ही ज़्यादा ambitious हो जाते हैं, जिसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, तब ये जो situation है वो dangerous हो जाता है. So our story begins on battlefield where Scotland is under attack. Scotland पर नॉर्वेज ने अटैक किया है with the help of Scottish rebels. जो Scottish लोग थे, कुछ rebels थे, उन्हीं के हेल्प से नॉर्वे ने स्कॉटलैंड पर अटैक किया है. But the Scots fight bravely to protect their king Duncan. And leading the charge is one fearless soldier, Macbeth, the Thane of Glamis. Thane means एक high position दिया जाता है king के through, like nobleman. So the Macbeth is already the Thane of Glamis, means the Lord of Glamis. His courage and skill in battlefield help Scotland win. After the fighting, Macbeth and his friend Banquo are walking across a lonely, empty plain when they suddenly meet three strange women, the weird sisters और witches. ठीक है, मैकबेथ और बेनको जो है एक सुनसान जगह पर थ्री विचेस से मिलते हैं, तीन चुड़ैलों से मिलते हैं, एंड दे स्पीक इन रिडल्स. वो पहेलियों में बात करते हैं एंड गिव थ्री प्रेडिक्शंस, तीन भविष्यवाणी करें. फर्स्ट इज मैकबेथ विल बी थेन ऑफ काडोर, वन डे किंग ऑफ स्कॉटलैंड. Then Banquo will never be king, but his children and grandchildren will be kings. ठीक है, तो ये तीन भविष्यवाणी थी कि मैकबेथ जो है वो काडो का थेन बनेगा, मतलब कि वहाँ का लॉर्ड बनेगा. देन किसी दिन वो स्कॉटलैंड का किंग बनेगा, और बैंको जो है वो कभी भी किंग नहीं बनेगा, लेकिन उसका जो बेटा है और उसका जो ग्रैंड चाइल्ड है वो दोनों किंग्स बनेंगे. एट फर्स्ट मैकबेथ एंड बैंको लाफ इट ऑफ. But soon after they hear that the old Thane of Cado was traitor and has been executed. King Duncan rewards Macbeth by giving him that title, Thane of Cado. One part of prophecy has already come true. एक भविष्यवाणी अब यहाँ पर सही हो गई. अब जो है मैकबेथ के दिमाग में डेंजरस प्लान चलना शुरू हो गए. Now a dangerous seed is planted in Macbeth's mind. He begins to wonder, could he really become king? The thought of killing Duncan flashes his mind, but he pushes it away. Then Duncan announces that his son Malcolm will be the next king. This makes Macbeth jealous. Malcolm is now in his way. When Duncan decides to visit Macbeth Castle at Inverness, Macbeth writes to his wife, Lady Macbeth, telling her about the witch's prophecy. अपनी वाइफ को ये लेटर लिखता है मैकबेथ, और जो भी कुछ उस विचेस ने लिखा था, वियर्ड सिस्टर्स ने लिखा था, वो सब कुछ ये इस लेटर में लिख देता है. अब मैकबेथ से ज़्यादा एम्बिशियस लेडी मैकबेथ थी, वो ज़्यादा सोचती थी. लेडी मैकबेथ immediately decides that her husband is too kind to seize the crown, so she will have to push him into action. She makes a deadly plan. Duncan will not leave their castle alive. अब यहाँ पर लेडी मैकबेथ ने डनकन को मारने का प्लान कर लिया था कि डनकन जब मरेगा तभी तो उसका हस्बैंड किंग बनेगा. तो ये सारी चीज़ें उसके माइंड में चलने लग गई. तो जब वो डनकन कैसल में गया उससे मिलने के लिए मैकबेथ से,
तो उसकी वाइफ ने बोल दिया कि ये यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहिए. When Macbeth arrives, Lady Macbeth tells him to kill Duncan that night. At first he refuses, but she questions his courage, mocks his manhood, and finally he agrees. While Duncan sleeps, they stab him and smear his blood on the guards, framing them for the murder. तो डनकन को मारकर इन्होंने क्या किया कि जो ब्लड था वो गार्ड्स के ऊपर फेंक दिया ताकि ये लगे कि इसका जो मर्डर है वो गार्ड्स ने किया है. देन नेक्स्ट मॉर्निंग मैकडफ, another Scottish nobleman, comes to wake the king but finds him dead. Now chaos breaks out. Macbeth pretends to be shocked, then kills the guards, claiming it was out of rage, but really to silence them. तो नेक्स्ट मॉर्निंग जब सबको पता चलता है कि जो डनकन है उसका मर्डर हो गया है, किंग का मर्डर हो गया है, तो मैकबेथ यहाँ पे ये प्रिटेंड करता है कि उसे नहीं पता और वो शॉक प्रिटेंड करता है कि बहुत ज़्यादा वो शॉक्ड है और उसी रेज में आकर वो गार्ड का मर्डर कर देता है, गार्ड को मार देता है ताकि वो किसी और को कुछ ना बता पाए. लेकिन सबको क्या बताता है कि वो गुस्से में आके उसे मार दिया क्योंकि उसे लग रहा है कि डनकन का मर्डर ये गार्ड्स नहीं किया है. नाउ डनकन सन्स Malcolm and Donalbain flee for safety, and because they run away, people suspect them of the murder. क्योंकि ये लोग भाग जाते हैं तो लोग क्या सोचते हैं कि यही लोग ने मर्डर किया है और मैकबेथ इज क्राउन्ड एज अ किंग, इसलिए लोग मैकबेथ को किंग बना देते हैं. बट बंको रिमेंबर्स द प्रोफेसी एंड सस्पेक्ट्स मैकबेथ. At the same time, Macbeth fears Banquo because the witches said Banquo's children will be kings. Macbeth invites Banquo and his son Fleance to the feast but secretly sends killer after them. Banquo is murdered but Fleance escapes. तो मैकबेथ ने बैंको का मर्डर करा दिया और उसका जो बेटा था फ्लियांस वो वहाँ से भाग गया. At the feast, Banquo's ghost appears to Macbeth. No one else can see it, but Macbeth speaks to it in fear. And the guests think that he had gone mad. ठीक है, तो यहाँ तक का सीन समझ में आया कि जो बैंको था पहले उसको मैकबेथ पे डाउट हो गया था क्योंकि जो विचेस ने जो भी प्रोफेसीज बताई थी वो दोनों के सामने बताई थी. तो बैंको को डाउट हो गया था कि इसने ही किंग का मर्डर कराया है या फिर खुद किया है. और यहाँ पर मैकबेथ को ये डर था कि जो प्रोफेसी थी उसमें आगे बताया गया था कि इसका जो बेटा है या फिर ग्रैंडसन है वो किंग बनेगा, वो बैंको को मारेगा और उसके बेटे को. इसलिए वो अपने घर पर इनवाइट करता है, एक फीस्ट के लिए इनवाइट करता है और एक किलर को भेजता है. तो उसका यहाँ पर बैंको का मर्डर हो जाता है, लेकिन जो उसका बेटा रहता है फ्लियांस वो वहाँ से भाग जाता है. और एक फीस्ट में बैंको का घोस्ट दिखाई देता है, उसका आत्मा दिखाई देता है. तो वो उससे बात कर रहा है, बाकी किसी को नहीं दिखाई दे रहा है, मैकबेथ से ही वो बात कर रहा है. और जो वहाँ पे जो भी गेस्ट थे उनको क्या लग रहा था कि जो मैकबेथ है वो पागल हो चुका है. मीनवाइल मैकडफ refuses to see Macbeth and goes to England to help Malcolm and gather an army. Now worried about his future, Macbeth visits witches again. They show him 3 visions. Be aware of Macduff. No man born of a woman can harm Macbeth. जो भी आदमी अपने माँ से जन्मा है वो कोई भी मैकबेथ को मार नहीं सकता और मैकडफ से बच के रहना है. And the last was that he will be safe until Burnham Woods moves to Dunsinane Hill. Now Macbeth feels untouchable. After all men are born of women and forests don't move. तो अब यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया कि उसे कोई मार नहीं सकता. But when witches remind him about Banquo's descendants, he grows angry and sends soldiers to kill Macduff's family. In England, Macduff hears the news and swears revenge. Malcolm gathers an army with English soldiers and Scottish rebels. Meanwhile, Lady Macbeth starts losing her mind. She walks in her sleep, rubbing her hands if she trying to wash off blood only she can see. Guilt eats her alive. वो मर जाती है, मतलब कि वो अपने गिल्ट में ही मर जाती है. Now Macbeth becomes cruel and arrogant. Malcolm's army reaches Burnham Wood and the soldiers cut branches to hide behind, making it look like the forest is moving towards Dunsinane Hills, just as the prophecy said. तो ये पूरी तरीके से मैकबेथ का मर्डर का प्लान हो रहा था. In the castle, Macbeth learns Lady Macbeth has died, possibly by suicide. Now Macbeth is totally numb. He speaks to himself that how short and meaningless life is. Now the final battle begins. Last का battle start होता है. Macbeth fights fiercely, believing no man born of a woman can harm him. कोई भी आदमी जो माँ से जन्मा है वो उसे मार नहीं सकता और इस बात से वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था.
But when Macduff faces him, he reveals he was born through a caesarean birth, not a natural birth, not in a usual way. So that prophecy had a hidden meaning. Macduff kills Macbeth, Malcolm becomes king, and peace returned to Scotland. So the prophecy about Bunko's descendants will still come true someday, but for now the bloody reign is over. So that's all for this summary. Now let's see few question answer based on this drama. So the first question is, discuss the character of Lady Macduff in Shakespeare's Macbeth. तो 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है. इंट्रोडक्शन में आप राइटर्स के बारे में लिख सकते हैं, थोड़ा सा जो वर्क है चाहे वो ड्रामा हो या नॉवेल हो उसके बारे में लिख सकते हैं, और जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स. तो चलिए देखते हैं ये इंट्रोडक्शन कैसा है. Macbeth is one of the most famous tragedies written by William Shakespeare, the greatest playwright of the English Renaissance. The play was likely written around 1606 during the reign of King James I. It explores universal themes such as ambition, guilt, faith, betrayal, and the struggle between good and evil. Shakespeare is known for his powerful use of language, vivid imagery, and deep psychological insight into his characters. The story of Macbeth follows a brave Scottish nobleman whose uncontrolled ambition drives him to murder King Duncan and seize the throne. This act sets off a chain of violence and leads to his downfall. In this tragic world, Lady Macduff, the wife of Macduff, a loyal nobleman. तो लेडी मैकडफ कौन थी? वाइफ ऑफ मैकडफ. appears only briefly, बहुत ही थोड़े सीन में है वो, but her presence is powerful. She represents love, loyalty and nurturing side of family life. Her character stands in clear contrast to Lady Macbeth's ambition and cruelty. तो दोनों का नेचर एकदम अलग था, लेडी मैकबेथ का और लेडी मैकडफ का. So the contrast between their nature actually highlights the theme of nurturing. Moral values versus corrupt power. Through Lady Macduff, Shakespeare shows the human cost of political greed and the destruction of innocence in world ruled by violence. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देना चाह रही हूँ कि जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं मैकबेथ पे बेस. तो क्या इंट्रोडक्शन भी हम डिफरेंट लिखें या फिर सेम लिखें? तो जो मैंने फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स बताए हैं वो आप एग्जैक्टली सेम लिख सकते हैं, और जो थर्ड पैराग्राफ है वो लेडी मैकडफ के बारे में है, तो आप हर क्वेश्चन में इसे नहीं लिख सकते हैं. तो जैसा मैंने पहले बताया, जो क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है आपको बस वो ऐड करना है यहाँ पे थर्ड पैराग्राफ के बदले. तो लेडी मैकडफ एक ही सीन में आई है. ओके, शी अपीयर्स इन ओनली वन सीन ऑफ मैकबेथ, बट शी लीव्स अ स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन. बहुत ही स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ती है यहाँ पे. शी इज़ अ वेरी केयरिंग एंड प्रोटेक्टिव मदर, वेरी डिफरेंट फ्रॉम द सेल्फिश एंड पावर हंग्री मैकबेथ एंड हिज वाइफ. So in Act 4, Scene 2, we see her talking to her young son. She believes love and loyalty are the most important things in life, and she wants her son to learn the same values. And when she finds out that her husband Macduff has gone away without telling her, she becomes angry. For her, family comes first, and leaving your family means betraying them. ठीक है, वो मतलब गुस्सा हो जाती है जब मैकडफ उसे बिना बताए चला जाता है, क्योंकि उसके लिए फैमिली पहले आती है. चाहे जो भी रीज़न है, तुमको फैमिली को इन्फॉर्म करना है, और अगर ऐसा नहीं कर रहे हो तो मतलब तुम फैमिली को धोखा दे रहे हो. रॉस ट्राइज टू टेल हर दैट मे बी मैकडफ हैड अ गुड रीज़न फॉर गोइंग, बट शी रेफ्यूजेस टू बिलीव इट. रॉस कौन है यहाँ पर? एक नोबल मैसेंजर है. वो लेडी मैकडफ को ये समझा रहा है कि मैकडफ के जाने का कोई अच्छा रीज़न हो सकता है, कोई सॉलिड रीज़न हो सकता है, लेकिन यहाँ पे लेडी मैकडफ उसे मानने को तैयार नहीं थी. शी सेज दैट अ मैन हु लिव्स हिज फैमिली इज लाइक अ लायर एंड अ स्वेरर. शी इवन टेल्स हर सन दैट हिज फादर इज डेड, showing how hurt and upset she feels. But the safety she wants for her children doesn't last long. Macbeth's men arrive at the castle to kill them. तो ये जो सेफ्टी चाहती थी अपने बच्चों के लिए वो उसे मिल नहीं पाया ज़्यादा देर तक. मैकडफ के आदमी लोग आ गए थे उनको मारने के लिए. तो इस सिचुएशन में भी वो बहुत ज़्यादा ब्रेव एक्ट की, बहुत ज़्यादा बोल्डली एक्ट की. So even in danger, Lady Macduff speaks bravely and answers the murderer boldly when they ask about her husband. Sadly, her courage can't save her or her children, and they all are killed. This cruel act shows how far Macbeth is ready to go to keep his power. Then
लेडी मैकडफ्स कैरेक्टर ऑल्सो हेल्प अस टू अंडरस्टैंड लेडी मैकबेथ बेटर। ठीक है, तो लेडी मैकडफ का जो कैरेक्टर है उसके कैरेक्टर के थ्रू हम लेडी मैकबेथ को भी और अच्छे से समझ पा रहे हैं। बोथ वीमेन आर स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट एंड नॉट अफ्रेड टू स्पीक देयर माइंड्स। लेडी मैकबेथ विल नॉट गिव अप हर प्लान टू किल किंग डनकन, and Lady Macduff will not believe her husband had a good reason to leave. Shakespeare shows that women can be strong and influential even within the home. तो इस ड्रामा के थ्रू शेक्सपियर ने क्या बताया कि जो विमेन होती है वो घर के अंदर रहने के बाद भी स्ट्रॉन्ग और इन्फ्लुएंशियल हो सकती है। तो हमने यहाँ पे दोनों कैरेक्टर को समझ लिया है, पर देखा जाए तो एक्चुअली में दोनों का जो गोल था वो डिफरेंट था। ओके, देयर गोल्स आर वेरी डिफरेंट। लेडी मैकडफ केयर्स अबाउट हर फैमिली सेफ्टी, while Lady Macbeth is driven by greed and ambition. By making them opposites, Shakespeare shows that strength can lead to good or bad results depending on a person's values. ठीक है, स्ट्रेंथ अगर है तो वो दोनों चीज़ बता सकता है, एक अच्छा रिजल्ट भी दे सकता है, बुरा रिजल्ट भी दे सकता है। डिपेंड क्या करता है कि हम कैसे पले बढ़े हैं, हमारे अंदर कैसा वैल्यूज़ है। Lady Macduff's love makes her a good person, but Lady Macbeth's ambition leads to her downfall. Now let's say the conclusion. Although Lady Macduff appears in only one scene of Macbeth, she leaves a lasting impact on the audience. भले ही Lady Macduff का रोल बहुत ही छोटा था, लेकिन उसका जो इम्प्रेशन था, उसका जो इम्पैक्ट था ऑडियंस पर, वो बहुत ही ज़्यादा था, बहुत स्ट्रॉन्ग था। शी स्टैंड्स एज अ सिंबल ऑफ लव, लॉयल्टी, मोरल स्ट्रेंथ, showing a sharp contrast to the greed and ambition of the Macbeths. Her courage in facing danger and her deep care for her children make her memorable figure. ऐसा कई बार हुआ है कि कोई कैरेक्टर जो है, भले ही वो साइड कैरेक्टर का रोल प्ले किया है या फिर थोड़ी देर के लिए रहा है, फिर भी जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है उसके ऊपर वो हावी हो जाता है, उसका रोल इतना स्ट्रॉन्ग रहता है। जैसे कि बाजीराव मस्तानी में जो काशी का रोल है वो साइड रोल है, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्टफुल है। Through her tragic death, Shakespeare reminds us of the innocent lives destroyed by political ambition and power struggles. Lady Macduff's character adds emotional depth to the play and highlights the value of family and integrity in a corrupt. The next question is, analyze the character of Lady Macbeth as the fourth witch. मतलब जो भी कैरेक्टर दिखाया गया था थ्री विचेस का, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो लेडी मैकबेथ का कैरेक्टर है वो फोर्थ विच के जैसा, अगर कोई फोर्थ विच होता, कोई फोर्थ चुड़ैल होती, तो उसका कैरेक्टर और इसका कैरेक्टर सेम होता। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो हमको इसके कैरेक्टर को एनालाइज करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया है, आप उसे पढ़ना। विल स्टार्ट डायरेक्टली विद द मेन कंटेंट। सो आई विल एक्सप्लेन इन शॉर्ट व्हाट इज रिटन इन द नोट्स। ओके, लेडी मैकबेथ इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड स्कैरी कैरेक्टर्स इन मैकबेथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत ही डरावनी कैरेक्टर है। सम एक्सपर्ट्स इवन कॉल हर द फोर्थ विच ऑफ द प्ले। अगर कोई फोर्थ विच होता तो ये लेडी मैकबेथ है। व्हेन वी लुक एट व्हाट शी सेज एंड डज, वी कैन ईजिली से व्हाई शी इज कॉल्ड एज अ फोर्थ विच, लाइक द थ्री विचेस, जो तीन विचेस थी हु प्रिडिक्ट्स मैकबेथ्स राइज टू पावर। लेडी मैकबेथ ऑल्सो स्पीक्स इन स्ट्रेंज एंड शॉकिंग वेज। जो तीन विचेस थी वो लोग भी रिडल्स में बात करते थे, पहेलियों में बात करते थे, तो वैसे ही लेडी मैकबेथ थी, उसका भी बात करने का तरीका बहुत ही स्ट्रेंज था। शी टॉक्स अबाउट वायलेंस विदाउट फियर, एकदम बड़ी बड़ी बातें बिना डरे बोल देती थी। इवन सेइंग शी वुड किल हर ओन बेबी इफ़ शी हैड प्रॉमिस्ड टू डू सो। अपने खुद के बच्चे को मार देगी अगर उसने कभी किसी से प्रॉमिस किया है या खुद से प्रॉमिस किया है। वो इतनी ज़्यादा ओवर एम्बिशियस बोल सकते हैं, ऐसी थी वो। इन शेक्सपियर्स टाइम विमेन वर एक्सपेक्टेड टू बी काइंड एंड कैरिंग, सो दिस काइंड ऑफ टॉक वॉज शॉकिंग एंड अननेचुरल। इनफैक्ट अभी भी विमेन को ऐसे ही देखा जाता है कि वो लोग बहुत ही काइंड हार्टेड होती है या फिर सॉफ्ट स्पोकन होती है, इतनी बड़ी बड़ी बात नहीं बोल सकते, एकदम क्रूएलिटी उनमें नहीं रहती है। ऐसे ही हमारा एक माइंडसेट है औरतों को लेकर, तो ये उस कैरेक्टर के एकदम ही अपोजिट थी। शी कैन बी सीन एज अ फोर्थ विच बिकॉज शी वॉन्ट्स टू चेंज वॉट इज नेचुरल। द विचेस से फेयर इज फाउल एंड फाउल इज फेयर, मीन्स वॉट अपीयर्स गुड इज एक्चुअली इवल एंड वॉट इज इवल इज एक्चुअली गुड। मतलब जो चीज़ हम अच्छा देखते हैं वो एक्चुअली ख़राब होता है और जो ख़राब है वो अच्छा होता है। ये बहुत ही फेमस लाइन था
इसमें मैकबेथ से. So, Lady Macbeth does something similar when she tells Macbeth to look like the innocent flower but be the serpent under it. मतलब तुम दिखो अच्छा, दिखो innocent, पर रहो मत. She actually tries to make bad things look good and good things look bad. Both she and the witches bring confusion and darkness instead of light and order. Her strong ambition is another reason people compare her to the witches. She wants power so much that she is ready to destroy anyone in her way. In Shakespeare's time, people believed kings were chosen by God. But Lady Macbeth doesn't care. She wants Macbeth to become king no matter what, even if it means killing. So, this shows she is like the new kind of people in that time who cared more about money and power than about old tradition. As a woman in man's world, ठीक है, जहाँ पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी है, Lady Macbeth cannot take power directly. So she uses other ways, pushing Macbeth to kill Duncan and even asking evil spirits to unsex her and fill her with cruelty. This makes her like the witches, someone who goes against the nature and breaks society's rules. But unlike the witches, she is human. मतलब कितना भी हो जाए लेकिन है तो human. तो बाद में इसे रियलाइज होता है, वो गिल्ट में ही पागल हो जाती है और मर जाती है. मतलब कि वो ऐसे नींद में चलने लगती है, उसके हाथ में उसको ब्लड दिखाई देता है, एकदम पागल जैसे बिहेव करने लगती है. एंड इन द एंड शी डाइज, मोस्ट लाइकली बाय सुसाइड. कॉलिंग लेडी मैकबेथ द फोर्थ विच हेल्प अस अंडरस्टैंड हर बेटर. Like witches, she shows the dark side of ambition and the danger of trying to change faith. But unlike them, she suffers the result of her actions. और witches जो है वो अपने एक्शन का रिजल्ट कभी नहीं सफ़र करती हैं, लेकिन यहाँ पर लेडी मैकबेथ ने सफ़र किया. एंड दिस मेक्स हर बोथ फ्रैटनिंग एंड ट्रेजिक. हर स्टोरी इज़ अ वार्निंग. टू मच ऑफ एम्बिशन कैन डिस्ट्रॉय अ पर्सन फ्रॉम द इनसाइड. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए, कमेंट करिए. ऐसे और भी वीडियोस आने वाले हैं, तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ. तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए. बाय.